Enchanté licencies. So hello everyone. आज से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंच टर्म 2 के वीडियोस. तो उसमें ये है हमारा पहला लेसन. लेट्स गेट गोइंग. Le ciel bleu, le parc vert. What does this mean? The blue sky, the green park. So that means एक चीज तो हमें पता चल गई. इस लेसन में हम कलर्स जरूर सीखने वाले हैं. So let's look at our comprehension. Il fait jour, il fait beau. So it is daytime, it is pretty beautiful. Le ciel est bleu. The sky is blue, and in the sky, il y a un peu de nuages blancs. There are a few white clouds, mais soleil brille, but the sun shines. Je vais au parc. So I'm going to the park, et dans le parc, il y a des arbres, des herbes. So in the park there are trees, there are plants, et dans les arbres, in the trees, il y a des fleurs roses et rouges. So there are some pink flowers, some red flowers, et des feuilles vertes. Feuilles vertes means some green leaves. So यहाँ पर उन्होंने डे डिस्क्राइब कर दिया एंड बताया कि वो पार्क जा रहे हैं एंड पार्क में तरह तरह के फूल एंड पत्तियां वो देख रहे हैं. Des papillons orange et jaune. Cool. So the orange and yellow butterflies fly, these oiseaux violet chant, and the violet birds, they are singing. Le soleil couche. The sun sets. Il fait nuit. It is very dark. Et le parc est noir. So everything in the park has become dark. Le silence est partout. Everywhere there's silence. Tous les jours, toutes les saisons, je vais au parc. So no matter what day, which season, I go to the park and I love the park. Okay, so इस छोटे से कॉम्प्रिहेंशन में हमने जाना कि there's a person जो वेदर डिस्क्राइब कर रहा है and is very excited about going to the park. वो पार्क जाके वहाँ पे डिफरेंट कलर्स के चीज़ों को हमारे लिए हाईलाइट कर रहा है. रात हो गई है ना, वो घर की तरफ लौट रहा है एंड कह रहा है कि हर जगह साइलेंस है बट मुझे पार्क जाना पसंद है. तो चलिए आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी. क्या आप अपनी बुक में फिर से एक बार इस कॉम्प्रिहेंशन को गो थ्रू करेंगे एंड कैन यू फाइंड फॉर मी ऑल द एक्सप्रेशंस व्हिच बिगिन विद il fait and all the names of the colors that you can find in the comprehension. जितने मैंने ब्लैंक्स बनाए हैं उतनी चीजें कॉम्प्रिहेंशन में गिवन है. Take some time, pause the video and try to find them all. Once you're done, you know what to do, right? And match your answers with mine. So यहाँ पे कुछ expressions जो il fait के साथ मैंने देखे. It was il fait jour, it is daytime. Il fait beau, it's beautiful. Il fait nuit, it's dark. And then I saw names of so many colors right here. So क्या क्या सीखने वाले हम इस लेसन में? Although मैं शुरू में बता चुकी हूँ, कलर्स हम सीखेंगे बट उसके अलावा we will be learning a new verb, the verb aller. And we will also look at different seasons. हम seasons describe करना सीखेंगे in French along with the colors. Okay, so एक एक करके let's begin. सबसे पहला टॉपिक है हमारा le verb aller. So être and avoir verb की तरह हमारा aller verb भी क्या है? एक helping verb की तरह. So être और avoir ये दो verbs हम already कर चुके हैं. दोनों ही irregular conjugations थे, हमने उन्हें लर्न किया था. ये उसी फैमिली का तीसरा मेंबर है. aller which means to go. इसकी conjugation भी irregular ही है, तो चलिए इसकी pronunciation सीख लेते हैं. Just repeat after me, okay? Je vais, tu vas,
Very good. Ilva. Elva. Nous allons. Just say it again. Nous allons. Vous allez. Ils sont. Elles sont. So this becomes the conjugation of the verb aller, which you will have to learn. And अगर ऑलरेडी लर्न कर ली है, क्योंकि शायद मैं वीडियो पोस्ट करने में काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो मेरे साथ कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करोगे? चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज, यू हैव टू कंप्लीट द कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब. मैंने कुछ जगह ब्लैंक छोड़ी है आपके लिए. आपको बस वीडियो को पॉज करके उन ब्लैंक्स को फिल करना है. एंड वंस यू आर डन, आपको अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स से मैच करना है टू सी कि आप सही से टेबल फिल कर पाए या नहीं. अगली एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस जो मैंने सिंगुलर में लिखे. Je vais à l'école, tu vas au parc, il va au cinéma. So, can you pause the video and change them into plural? आता है ना? Je का plural? No. तो conjugation भी je वे से क्या बन जाएगी? Nous allons. And क्योंकि à l'école is a place, it will stay the same. We go to the school. So quickly pause it. Try the remaining 3 sentences. Once you're done, match your answers from here. So I see आले वर्ब काफी अच्छे से आती है आपको. Well done. तो चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ा जाए. The colors. अब कलर्स भी मोस्टली आपको लर्न ही करने होंगे, राइट? बट कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कलर्स को लेके जिन्हें हमें समझना जरूरी है. So in French we call colors les adjectifs de couleur. So colors का नेचर बिल्कुल adjectives जैसा है फ्रेंच में, क्योंकि they agree to the gender and number of noun. तो यानी अगर noun सिंगुलर है तो कलर भी सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे, noun प्लूरल है तो कलर भी प्लूरल फॉर्म में. ओके, अब एग्जांपल देखो. Un stylo noir, a black pen. बट जैसे ही मैंने इसको प्लूरल किया, ये क्या बन गया? Des stylos noirs. Une robe bleue, again प्लूरल में des robes bleues with an es. ओके, तो चलिए रूल्स को समझा जाए. सो सबसे पहली टेबल में हम देख रहे हैं रोल नंबर 1. इस केस में we do not add an extra e in the color in case there is already an e in the masculine. So आप देख रहे हैं the color red in masculine is rouge. So even in feminine singular it is rouge. And plural forms में मैंने बस s ऐड करा. इसी तरह रोज का feminine singular क्या होगा बेटा? ROSE. And इनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए just add s. Similarly, we will have jaune. तो ये 3 कलर्स ऐसे हैं जिनका मैस्कुलिन और फेमिनिन सिंगुलर फॉर्म सेम. अगले रूल में हम बात करने वाले हैं उन कलर्स की जिनका फेमिनिन फॉर्म बनाने के लिए हमें e ऐड करना. Like the color noir, which is black. In masculine singular, it is noir. In feminine singular, it becomes noire. In masculine plural, I add s to the masculine singular form. And in feminine plural, I add s to the feminine singular. तो एक करके दिखाओ. Le couleur brun. So feminine singular क्या है? Brune. Masculine plural क्या होगा बच्चे? Bruns. And feminine plural Brunes. Wonderful. So इसी तरह ये पांचों कलर्स का टेबल पूरा हो जाएगा. लास्ट रूल जो हमारा आता है, इट इज ऑफ एक्सेप्शंस. कुछ कलर्स
कलर्स ऐसे हैं जिनका थोड़ा यूनिक फॉर्म है, जैसे द कलर व्हाइट। सो कलर व्हाइट का मैस्कुलिन टू फेमिनिन बनाते वक्त सिर्फ ई नहीं ऐड करना बच्चे, क्या ऐड करना है? एच ई। सो ब्लॉन्क बन जाएगा ब्लॉश। ऐसे ही प्लूरल बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कौन सा बनाना है, मैस्कुलिन प्लूरल या फेमिनिन प्लूरल। ओके, एंड फिर हम आते हैं लास्ट टू कलर्स की तरफ, वो है मरून एंड ऑरेंज, जो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, स्टे द सेम। समझ आ गए सारे रूल्स बच्चों? तो चलिए एक साथ देखें सारे कलर्स को एक टेबल में। यहां मैंने सिर्फ कलर्स के सिंगुलर फॉर्म दिए बच्चे, ठीक है? प्लूरल बनाने के लिए जस्ट रिमेंबर उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में एस ऐड कर दीजिएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। चलिए अब बारी है एक एक्सरसाइज की। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज जहां आपको ब्लैंक फिल करना है विद द राइट कलर। तो एक सैंपल सेंटेंस पहले मैं दिखा देती हूँ। जैसे मेरा सेंटेंस था, ले बैलोंग सॉन्ग एंड इन द ब्रैकेट आई हैड द कलर ब्लू, ये इंग्लिश में, ओके? तो मैंने अपने नाउन को देखा बैलोंग, दिस इज मैस्कुलिन प्लूरल। तो जो मेरे को ब्लू का फॉर्म लिखना होगा वो भी मैंने कौन सा लिखा? मैस्कुलिन प्लूरल। तो चलिए ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए रेडी कर दिए हैं, करिए इनको ट्राई, एंड जैसे ही हो जाए देखिए आप कितना सही से इनको कर पाए। कर लिया मैच? वेरी वेल डन। लेट्स मूव ऑन। प्लेसमेंट ऑफ कलर्स इन अ सेंटेंस। अब ये ऑल्दो है बहुत इजी, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं यहाँ 2 एग्जांपल्स दिखाऊंगी, इनको ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से। फ्रेंच में मैं कह रही हूँ le ciel bleu, la fleur rouge, बट इंग्लिश में मैं कह रही हूँ द ब्लू स्काई, द रेड फ्लावर। नोटिस किया फर्क? कलर्स इन फ्रेंच, जो आपने सेंटेंसेस देखे ये दोनों, दे आर प्लेस्ड आफ्टर द नाउन, whereas इंग्लिश में बच्चे क्या हो रहा है? कलर्स आर प्लेस्ड बिफोर। ओके, सो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कभी हम ट्रांसलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इंग्लिश में कलर्स आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन, फ्रेंच में दे आर प्लेस्ड आफ्टर। ओके, चलिए एक एक्सरसाइज करें प्रैक्टिस की। सो ये है मेरा सेंटेंस, रे देस्तीलो। अब मैंने कलर फ्रेंच में लिखा है बट उसकी मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म, ओके? तो अब पहले 2 काम करेंगे। नंबर 1, नाउन आइडेंटिफाई करो, उसका नंबर और जेंडर क्या है, नाउन मैस्कुलिन है या फेमिनिन, सिंगुलर है या प्लूरल। अब इस केस में मैस्कुलिन प्लूरल, तो ब्लू कलर की मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म क्या होती है बेटा? PLEUS। जब मैंने ये पता लगा लिया, अब मुझे इसे प्लेस करना है सेंटेंस में। फ्रेंच में कहाँ आता है कलर, बिफोर द नाउन या आफ्टर? आफ्टर। तो मेरा आंसर कुछ इस तरह का बनेगा, शे देस्तीलो ब्लू। एक बार फिर मैंने 5 सेंटेंसेस दिए हैं एक्सरसाइज में, करिए इनको ट्राई। ट्राई होते ही क्या करना है? अपने आंसर्स को यहां से डालिए। आसान चल रहा है ना अभी तक सब कुछ? कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? तो चलिए एक आखिरी चीज कलर्स के बारे में। अब कई बार हमारे जो सेंटेंसेस हैं कुछ इस तरह से गिवन होते हैं, से in what shown, so this is a yellow box। अब हमें बोला जाता है कि सेंटेंस में से हटाओ, सिर्फ नाउन और कलर चाहिए मुझे सेंटेंस के अंदर। तो मैं इस सेंटेंस को फिर से लिख देती हूँ। कैसे लिखूंगी? La boîte est jaune, the box is yellow। इसी तरह अगर इसकी प्लूरल फॉर्म गिवन होती, ce sont des raisins verts, so these are some green grapes। अब अगेन मुझे यहाँ से ce sont हटाना है,
रेजा और व्यर्थ पे फोकस करना है, तो मैं सेंटेंस को कैसे रीराइट करूंगी? ले रेजा सो व्यर्थ। तो हमने दो चीज नोटिस की। पहला, इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल में चेंज हो गया, और दूसरा जो वर्ब थी वो नाउन के बाद आ गई। राइट? इजी है? नहीं समझ आया तो एक बार फिर से गो थ्रू करो वीडियो, पीछे 20 सेकंड जाके, एंड उसके बाद इस एक्सरसाइज को करो ट्राई। ट्राई टू रीराइट द सेंटेंसेस इन द सेम वे जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स में देखे। ठीक है? चलिए मैच कर लीजिए बच्चों अपने आंसर्स, क्योंकि यहां हमारा कलर्स का टॉपिक हुआ फिनिश। अब हम बढ़ेंगे इस लेसन के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सीजन्स। सो आपके बुक में सीजन्स की डिस्क्रिप्शन अलग से गिवन है। पेपर में आपको आपका फेवरेट सीजन डिस्क्राइब करना आ सकता है, कोई भी 2 सीजन्स आ सकते हैं, या कुछ स्कूल्स में चारों भी आ जाते हैं। तो लाइंस का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं पहले कौन से हैं ये 4 सीजन्स जिन्हें हमें सीखना है। Il y a 4 saisons dans une année. So there are 4 seasons in a year. The first one is l'été. Can you guess? Summer season, l'automne, autumn season, le printemps, spring season, and l'hiver, which is winter season. One thing to note, bacha, all these seasons are masculine by nature. Okay? चलिए एक एक करके अब इनके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ l'été. So l'été, nous allons à la plage. So in the summers, we go to the beach. Il fait chaud, le soleil brille. It's too hot and the sun shines bright. So ये तो summer की खासियत है, right? Next we have l'automne. En automne, les feuilles tombent. So in autumn season, the leaves fall. Il fait du vent. It is windy. Okay. Next, we have le printemps, which is spring. Au printemps, il y a beaucoup de fleurs. So in spring, there are a lot of flowers. Il fait beau. It is very, very beautiful. And last but not the least, bacha, we have l'hiver. En hiver, il neige. So in winter, it snows. Il fait froid. Et la terre est blanche. It is very cold and the land is white because of the snow. Easy देना ये descriptions. अच्छे बच्चे बन के जल्दी जल्दी इनको लर्न कर लीजिएगा एंड रिटन प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम से पहले. ओके? आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट इन एग्जाम अगर इस लेसन का कोई भी क्वेश्चन. इसी के साथ c'est la fin de la leçon. I will meet you in lesson 7 next week. Till then, keep learning, keep practicing. Okay? Au revoir.